Good afternoon. So, how are you? I hope all of you are very fine. So, we shall continue our work. It is a continuation of fascism by Mussolini. By Mussolini. So, Mussolini So, we have seen the domestic policy of Mussolini. Domestic policy, that is a corporate state. And then come to the foreign policy of Mussolini. Yesterday I told you that Mussolini, he understood that population of Italy is increasing. So there is a need of new areas for the rising population of Italy. So he actually is thinking about the expansionist role. And yesterday I told you that fascism believed in imperialism and colonialism, right? Fascism believed in the warring state. Fascism opposed the intellectual class. So all these factors here. So Mediterranean was a very important location of Italy. If anyone had control over the Mediterranean Sea, then obviously the trade with respect to Asia and colonial expansion in Africa is largely very much possible. Okay, so anybody thinking about the control over the Mediterranean Sea? Italy already had a desire. Italy wanted to rectify the mistakes that Italy, even after coming into the Big Four, आपको पता है बिग फोर में शामिल था इटली, फिर भी इटली की इतनी बेइज्जती हुई और इसको लेकर के इटली में काफी गुस्सा था. इटली में काफी गुस्सा था इटली के लोगों में कि मेडिटेरेनियन सी पर कैसे कंट्रोल करें ताकि अफ्रीका और एशिया के ट्रेड पर भी कंट्रोल हो पाए. एंड दिस इज अ रीजन व्हाई दे वर ट्राइंग लेवल बेस्ड. So Mussolini had planned expansion in the Mediterranean region and Africa. In order to accomplish the goal, he established control over the territories of Port of Fiume City and Port of Albania. ये दोनों पॉइंट आप यहां पर लिखिएगा. So in order to accomplish this goal, he established a control over the territories of the Port of Fiume City and the Port of Albania.
तो इसमें लिखना बच्चे कि Mussolini was concerned about the population growth. Mussolini was concerned about population growth. Therefore, Mussolini wanted expansion around Mediterranean Sea. Around Mediterranean Sea. In order to accomplish this goal, he established control over the territories of Port of Fiume City and the Port of Albania. In order to accomplish this goal, he established control over the territories of Port of Fiume City and the Port of Albania. अभी देखो तो वॉइस ठीक आ रहा है? Is it right now? ओके, तो ये कॉपी किया आपने. मुसोलिनी हैड अ प्लान्ड एक्सपेंशन इन द मेडिटेरेनियन region and Africa. And in order to accomplish this goal, he established control over the territories of Port of Fiume City and Port of Albania. इन सबको आप मैप में देखिएगा तब आपको लगेगा कि इस दोनों जगह पर कंट्रोल करने से कैसे मेडिटेरेनियन सी पर कंट्रोल हो सकता है. मेडिटेरेनियन सी पर कंट्रोल हो सकता है इन सबको कंट्रोल करें तो. Control over the Port of Fiume, control over Albania. He also controlled the African country of Ethiopia in 1937. 1937. African country of Ethiopia in 1937. आप जानते हैं कि इथोपिया को लेकर के इटली ऑलरेडी एक वॉर हार चुका है. एंड दिस इज अ रीजन व्हाई दिस वॉर वाज वेरी इंपॉर्टेंट. और मुसोलिनी खुद जाकर के इथोपिया में अपना झंडा लगाया था. मुसोलिनी मेड अ डील विथ हिटलर इन 1937. ही रिजाइन फ्रॉम द लीग ऑफ नेशंस एंड दस ही क्रिएटेड द रोम बर्लिन एक्सिस. और रोम बर्लिन एक्सिस का जो फॉर्मूला है आप समझते हैं कि इस वर्ल्ड वॉर में कितना डिवास्टेटिंग रोल ये प्ले करेगा. इस तरह से रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस ये इस्टेब्लिश हुआ. बाद में टोक्यो भी आएगा इसमें. तो इस तरह से मुसोलिनी का फॉरेन पॉलिसी, इट वाज एन एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी. मैंने फासिज्म के बारे में बोला था आपको कि दे बिलीव्ड इन रेक्टिफिकेशन ऑफ पास्ट. जो पास्ट में जितने भी प्रॉब्लम हुए थे इटली के साथ उन सबको रेक्टिफाई कर देगा एक न एक दिन. और मुसोलिनी उसने जो डील किया और बाद में वो हिटलर के साथ भी आ गया था. जैसे तरह से हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस की जो डिसआर्मामेंट कमेटी थी उससे रिजाइन किया था, उसी तरह से मुसोलिनी ने लीग ऑफ नेशंस को छोड़ दिया. और मुसोलिनी का कहना था जो मेडिटेरेनियन सी है दैट इज ऑल टुगेदर नोन एज इटालियन लेक. ये इटली का झील है.
इट इज नोन एज इटालियन लेक। ये इटली का झील है ये। तो जाहिर है कि इससे इंग्लैंड को भी बड़ी प्रॉब्लम होगी, और अदर कंट्रीज दोज हु आर यूजिंग द मेडिटेरेनियन सी टू कनेक्ट विथ एशिया, they will also have a big problem with big issue with that. So इटली का झील बोलते थे मुसोलिनी। इस तरह से इंग्लैंड के अगेंस्ट में जो इसका सेंटिमेंट्स ग्रो हो रहा था, क्योंकि इंग्लैंड ने इटली को धोखा दिया था। मैं बार बार बोलता हूं ना कि जो इटली है वो उसको झुंझुना इन लोगों ने पकड़ा दिया था, एंड दिस इज अ रीजन वाई। यस, सारे पॉइंट्स आप नोट करिएगा। इसलिए इटली जो है उस पास्ट को रेक्टिफाई कर रहा है। इटली वॉज ट्राइंग टू रेक्टिफाई द पास्ट। अब इंटर वॉर पीरियड में, मतलब दो विश्व युद्ध के बीच में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है, वो है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन अभी भी पूरी दुनिया में इस तरह की चर्चा होती है। ठीक है, ये काफी छोटा पॉइंट है, अब मैं लिखवाता हूं। ठीक है, तो अब देखो, हम लोग जो इंटर वॉर पीरियड पढ़ रहे थे ना, इंटर वॉर पीरियड पढ़ रहे थे, उस इंटर वॉर पीरियड में मैं बता देता हूं बच्चे। इंटर वॉर पीरियड 1919 से लेकर के 1939, ये जो 20 साल का पीरियड था, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दिखाई दिया, और वो था राइज ऑफ नाजिज्म एंड फासिज्म। ठीक है, तीसरा एक बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट था जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, अर्थव्यवस्था काफी खराब हो गई थी। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे आपसे। ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन जो 1929 में आया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और चौथी बात, हम लोग जापान को पिक्चर में लाएंगे, और जापान कैसे यहां पर मिलिट्रिज्म डेवलप हुआ, क्योंकि बगैर जापान के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो मजा नहीं आएगा। इसलिए जापान का मिलिटराइजेशन कितना ज्यादा था, कितना मिरेकुलस था, दोनों को हम लोग बात करते हैं। ठीक है, नाजिज्म जो है वो रेसिज्म में बिलीव करता है, प्योरिटी ऑफ रेस में बिलीव करता है। फासिज्म में इस तरह के सेंटिमेंट्स नहीं दिखते हैं। नाजिज्म जो है वो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी और वॉर को फॉलो करता है। फासिज्म इंटरनल इकोनॉमिक रिफॉर्म और इकोनॉमिक बिल्टअप, स्ट्रक्चरल चेंज में बिलीव करता है। दोनों इंपेरियलिज्म की कोशिश करता है, बट फॉरेन पॉलिसी ऑफ हिटलर वाज मोर एग्रेसिव। फासिज्म जो था वो इकोनॉमिक एग्रेसिवनेस पर बिलीव करता था। वरना जो फासिज्म है, जो नाजिज्म है, वो जर्मन वर्जन ऑफ फासिज्म ही है। नाजिज्म इज बेसिकली जर्मन वर्जन ऑफ फासिज्म। दोनों हीगल के प्रिंसिपल में बिलीव करते हैं, दोनों स्टेट की सुपरमैसी में बिलीव करते हैं। सो बेसिकली इट इज व्हाट, द जर्मन वर्जन ऑफ फासिज्म। ठीक है, मनीष शंकर मोदी अलग अलग है, काफी है। रिजाइन फ्रॉम द लीग ऑफ नेशंस। देखो क्या है कि हिटलर के साथ डील करना जरूरी था। हिटलर के साथ डील करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है वो एंटी ब्रिटिश फॉर्मूले पर आके टिक गई थी, और इसीलिए दोनों साथ आए थे। क्योंकि मेडिटेरेनियन में अगर इटली का कंट्रोल होगा तो इंग्लैंड तो हेल्पलेस हो जाएगा, और इसीलिए एंटी ब्रिटिश फॉर्मूला डेवलप हुआ।
ठीक है बच्चे, अब आ जाओ, हेडिंग दे दो बड़ा सा, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929। ट्वेंटी ईयर्स, दोनों के बीच का पीरियड 20 ईयर्स है ना, 1919 से लेकर के 1939, ये पीरियड 29 ईयर्स हुआ। तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना कि देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो यूरोप में कंज्यूमर गुड्स के जितने भी इंडस्ट्री थे, आराम से सुनना, यूरोप में कंज्यूमर गुड्स के जितने भी इंडस्ट्री थे सब वॉर रिलेटेड इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गया था। तो यूरोप की जो डिमांड थी कंज्यूमर गुड्स की, उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? अमेरिका को हुआ। अमेरिका तो हर एक, बोलते हैं ना आपदा में अवसर, तो अमेरिका के लिए हमेशा अवसर होता है। पूरी दुनिया में कोई प्रॉब्लम हो और इसका फायदा अमेरिकन उठा ले जाते हैं। तो अमेरिका ने काफी ज्यादा सप्लाई करना शुरू किया गुड्स यूरोपियन कंट्रीज को। तो अमेरिकन इंडस्ट्री गजब बूस्ट की। अमेरिकी फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर ने बहुत जबरदस्त छलांग लगाई और इतना ज्यादा इन लोगों ने डेवलप किया कि इतना पैसा हो गया कि दुनिया भर के बैंक में, दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज में अमेरिकी बैंक ने पैसा लगा दिया था। मगर कुछ दिनों के बाद जब वॉर खत्म हुआ और कुछ दिनों के बाद यूरोप की परचेजिंग पावर खत्म हो गई, यूरोपियन कंट्रीज काफी डेप्थ में आने लगे, तो जाहिर है अमेरिकन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इकोनॉमी था, काफी स्लो हो गया। और अमेरिकी इकोनॉमी स्लो हो जाएगा तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। और अमेरिकी बैंकों ने पूरी दुनिया में जो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया था वो वापस खींचना शुरू हुआ, तो पूरी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज गिर गए थे। और इसीलिए कहते हैं कि अमेरिकन स्नीजेस देन इंटायर यूरोप कैचेज कोल्ड। जब अमेरिका छींकता है तो पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में सर्दी हो जाती है। और अब तो यह हाल हो गया था कि अमेरिका छींकता था तो पूरी दुनिया को बुखार आ जाता था। इसलिए अमेरिकी इकोनॉमी से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। अभी भी देखते हैं ना, अमेरिका की थोड़ा सा इकोनॉमी हिलती थी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी और खासकर भारत की इकोनॉमी काफी ज्यादा हिल जाती थी। तो ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कहलाता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे, लिखना इसको। माइक ठीक है बच्चे? मेरे ख्याल से माइक ठीक है। बजिंग साउंड तो नहीं आना चाहिए, माइक तो वही है जो सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक शटडाउन या ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में हम लोग पहला पॉइंट कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, दूसरा कॉजेस, तीसरा सॉल्यूशन और चौथा कॉन्सिक्वेंसेस। इंट्रोडक्शन, कॉजेस, क्या कॉज था? अभी मैंने आपको एक ब्रीफ दिया कि कॉज बेसिकली रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और दूसरा था अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का क्रैश होना, और तीसरा है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, जो अभी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। पहले सॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन देखिए। तो लिखिए, आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का। Great economic depression of 1929-30 was ultimate impact of First World War. Ultimate impact of First World War.
It was a long-lasting. It was a long-lasting economic recession. Long-lasting economic recession. It was a long-lasting economic recession in the history of the Western industrialized world. In the history of Western industrialized world. In the history of Western industrialized world. However, the timing of this was different in different countries. Timing of this was very different in different countries. Different countries. In most countries, which started in 1929, when panic spread in Wall Street. देखो तो बच्चे, वॉइस अभी ठीक आ गई है? वॉइस अभी ठीक आ गई है? वॉइस प्रॉब्लम है, अभी भी बोल रहा है। हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है। अभी आ रहे कुछ टेक्निकल रीजन है और सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। When panic spread in Wall Street because of a historic fall in the stock market, it बोल रहा क्लियर है। On October 29, 1920, this is called Black Tuesday. इस पॉइंट को जरा देखना सारे बच्चे, इस पॉइंट को जरा देखिएगा कि कैसे when the panic spread in the Wall Street because of a historic fall in the stock market on October 29, 1929. Okay, fine. Causes पर आते हैं हम लोग। Causes of the Great Economic Depression. Causes of the Great Economic Depression. First World War. First World War. लिखिए इसमें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नोट करना कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर all industries of Europe had converted into war industries. Had converted into war industries. All industries of Europe had converted into war industries. War industries. Therefore, there was huge demand of
consumer goods. There was huge demand of consumer goods. America emerged as biggest supplier America emerged as biggest supplier therefore American industries and the financial sector American industries and financial sector had huge growth. American industries and financial sector had huge growth. American banks had investment in major stock exchanges. American banks had major investment in major stock exchange of the world. Major stock exchange of the world. But पैराग्राफ चेंज करके लिखना the purchasing power of the European countries decreased. Purchasing power of the European countries had decreased. Therefore, demand of the American goods had also decreased. Demand of American goods had also decreased. Demand of American goods had also decreased. This resulted in recession in American economy. This resulted in recession in American economy and ultimately in global economy. Global economy. Ultimately in global economy. ये फर्स्ट पॉइंट है. ओके, फर्स्ट पॉइंट है ये. तो इस तरह से अमेरिका, मैंने बताया आपको कि अमेरिकन स्नीजेस देन होल वर्ल्ड कैचेस फीवर. उधर सर्दी होती है, इधर बुखार होता है. तो इस तरह से अमेरिका ने इस ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो को आपदा में अवसर बोलते हैं ना, वो उठाने की कोशिश की, बट अल्टीमेटली काफी ज्यादा अमेरिका को लॉस होने लगा. और जब अमेरिका रिसेशन में आएगा तो पूरी दुनिया, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट का इंटीग्रेशन बहुत पहले हो चुका था. ओके फाइन, आ जाओ अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं. और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दैट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक नेशनलिज्म. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमिक नेशनलिज्म. क्या मतलब होता है इस वर्ड का, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. सारे बच्चे ध्यान से देखिए, इकोनॉमिक नेशनलिज्म का क्या मतलब है. कहते हैं ना कि जब यूरोप के बड़े बड़े देश वॉर में इन्वॉल्व थे, ठीक है, यूरोप के बड़े बड़े देश वॉर में इन्वॉल्व थे,
तो उनका एक्सपेंडिचर भी काफी हाई था। ठीक है, एक्सपेंडिचर भी काफी हाई था। तो इन लोगों ने अपनी देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, इकोनॉमी को बचाने के लिए इकोनॉमिक नेशनलिज्म लगाया। इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट, मतलब आयात को जो है वो एकदम कम करना है, एंड प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। तो बड़े अर्थव्यवस्था जब इस तरह का प्रोटेक्टिव एक ट्रेडिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करेगी ना, तो इसका ग्लोबल इंपैक्ट होगा। क्योंकि छोटे छोटे देशों की इकोनॉमी आपको पता है, जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर है। ठीक है, चाइना के बाद सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर था। अब अगर इंग्लैंड, अमेरिका ये सब बोले कि नहीं, गारमेंट नहीं पिक करेंगे, इंपोर्ट नहीं होगा, तो इसकी इकोनॉमी ही ध्वस्त हो जाएगी। तो इस तरह से छोटे देशों की इकोनॉमी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन बोलते हैं। इसमें लिखना, सेकेंड पॉइंट लिखना, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इकोनॉमिक नेशनलिज्म ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, during the First World War, there was a huge expenditure by major countries. There was a huge expenditure by major countries, and they were in huge debt. They were in huge debt. Therefore, in order to protect the domestic industries, in order to protect the domestic industries, in order to protect the domestic industries, economic nationalism was adopted. Economic nationalism was adopted. The meaning of economic nationalism was, the meaning of economic nationalism was export promotion and import restriction. Export promotion and import restriction. This policy had badly affected the economy of smaller countries, badly affected the economy of smaller countries. Export promotion and import restriction. So this policy had badly affected the economy of smaller countries, which resulted in global recession, which resulted in global recession. Resulted in global recession. Export promotion and import restrictions. थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो देखिए डिक्लाइन इन अमेरिकन शेयर मार्केट। इसको बोला जाता था ब्लैक ट्यूसडे। ब्लैक ट्यूसडे
decline in American share market. The trend of earning profit by investing in the stock market in America was increasing. मैं बता रहा हूं आपको कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतने ज्यादा इंडस्ट्रियल और कैपिटलिस्ट ग्रोथ हुआ था कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम सुपरलेटिव हाई पर था और पूरी दुनिया में अमेरिकन बैंक्स ने इन्वेस्टमेंट किए थे. ठीक है, बट जैसे ही रिसेशन की खबर उड़ी कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट एक साथ क्रैश किया था अक्टूबर 29, 1929 को, और वो था दिन ट्यूसडे और उसको ब्लैक ट्यूसडे कहा जाता था. सिंगल डे फॉल ह्यूज था तो इसको ब्लैक ट्यूसडे कहते हैं. और इसका परिणाम हुआ कि पूरी दुनिया से अमेरिकी बैंक ने पैसा खींचना शुरू किया ताकि अपने देश की इकोनॉमी को बचा सके, और इसके चलते पूरी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गए थे. और ये जो फॉर्मूला था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन. ओके, तो आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग द फैक्ट दैट कि दुनिया में अमेरिका का क्या दबदबा और पावर है. तो नेक्स्ट फैक्टर है डिक्लाइन इन अमेरिकन शेयर मार्केट. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर there was huge industrial and capitalist growth in America. Huge industrial and capitalist growth in America. Therefore, American stock exchange received high investment. American stock exchange had received high investment. High investment. American banks invested in major banks of the world. Major banks of the world. But the rumor of recession badly affected the stock market. Rumor of recession had badly affected the stock market. Badly affected the stock market. There was a huge fall in single day. There was a huge fall in single day. American banks started pulling the investment. American banks started pulling the investment from the European financial institutions, and major banks of Asia. Major banks of Asia. Major banks of Asia. This is called global economic recession. This is called global economic recession. तो तीन हमने इंपॉर्टेंट बात की आपसे.
पहला तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट हुआ था अमेरिका और पूरी दुनिया में। दूसरा हमने बोला इकोनॉमिक नेशनलिज्म का, जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था। इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मतलब ही होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, जो कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जिसमें बड़े एक्सपर्ट होते थे। भारत पर भी इसका बहुत बुरा इंपैक्ट हुआ। इंग्लैंड ने अपने देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए इकोनॉमिक नेशनलिज्म अडॉप्ट किया, मगर इंडिया को कोई प्रोटेक्टिव काम नहीं किया। इंडिया वॉज एक्सपोज्ड टू द चेंजेस इन द वर्ल्ड, और इसके चलते इंडिया की इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से क्रैश हुई थी। देयर वॉज अ मैसिव प्राइस राइज एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन दिस कंट्री। 1929-30 का जो फीचर था, ओके, तो 1929-30 का जो इंपैक्ट था इंडिया पर, उसके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंग्लैंड की थी। उसके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंग्लैंड की है। अब सॉल्यूशन क्या निकला इसका, कैसे दुनिया इस ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर आई, तो उस पर एक नजर देखते हैं। सारे बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात और समझने की जरूरत है। क्या सारे बच्चे मुझे समझ पा रहे हैं? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं मुझे? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को समझने में? आ जाओ। जो पहला सॉल्यूशन आया वो था अमेरिकन प्रेसिडेंट हूवर का, जिसको हूवर प्लान ऑफ 1931 बोला जाता है। जिसको हूवर प्लान ऑफ 1931 बोला जाता है। आराम से सुनना, एकदम कनेक्टेड सुनना। अमेरिकी प्रेसिडेंट हूवर ने बोला कि पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल पेमेंट है उसको 1-2 साल के लिए टाल देते हैं। मतलब किसी भी कंट्री को किसी भी कंट्री का जो भुगतान करना है, पैसा देना है, वो 1-2 साल के लिए टाल देते हैं, तो कंट्री की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी और रिसेशन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो हूवर का प्लान था, मगर इस बात पर कई सारे पावरफुल कंट्रीज एग्री नहीं हुए। बोले नहीं, हमको तो पैसा चाहिए, मेरा पैसा चाहिए, हर हाल में पैसे की दिक्कत है। दुनिया एक साइक्लिक चेन से चलती है इकोनॉमी में। अगर एक कंट्री भी क्रैश करेगा तो इकोनॉमी इतना इंटीग्रेटेड है कि पूरी दुनिया उससे अफेक्ट होगी। इंडिया का भी काफी बड़ा इसके साथ स्टेक है। काफी बड़ा स्टेक है। तो हूवर का प्लान फेल हो गया। उसके बाद लंदन में मीटिंग हुई और इसमें कई देशों के लोगों ने भाग लिया जो एक अपने आप को इकोनॉमिस्ट समझते थे। तो लंदन में यह कहा गया कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म को बंद करना पड़ेगा। इकोनॉमिक नेशनलिज्म को बंद करना पड़ेगा, मगर इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश जो कि तबाह हो चुके थे, इकोनॉमी इनकी बहुत क्रस्ट हो गई थी, वो बिल्कुल तैयार नहीं हुए इस बात के लिए, और जिसके चलते लंदन मीटिंग भी फेल हो गया था। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो है रूजवेल्ट का न्यू डील। और ये अमेरिका ने डिसाइड किया कि अब अमेरिकन इकोनॉमी को ही सुधारना पड़ेगा, तभी दुनिया की इकोनॉमी सुधरेगी। इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई, स्पेशल मीटिंग, जो करीब 100 दिन तक चला था, और उसने कई सारे रिफॉर्म्स पास किए थे, जिसको RRR कहा जाता है, रिलीफ, रिकवरी एंड रिफॉर्म। RRR, रिलीफ, रिकवरी एंड रिफॉर्म।
ये तीन इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलता है। तो कैसे अमेरिकन इकॉनमी सुधरा, कौन कौन से लॉज पास किए थे और उसका क्या इंपैक्ट हुआ, और दुनिया फिर ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर आई थी, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, काफी डिटेल में अभी करने वाले हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू विल लर्न द थिंग वेरी क्विकली। तो सॉल्यूशन पर आते हैं और हूबर प्लान को लिखिए। हूबर प्लान, अमेरिकन प्रेसिडेंट हूबर, अमेरिकन प्रेसिडेंट हूबर in 1931 proposed a solution to the economic problem, proposed a solution to the economic problem. Under this, he requested that all countries should defer the international payment for 1 year. All countries should postpone the international payment for 1 year. He wanted to give relief to the countries to develop its economy, so that trade and commerce will receive major boost. Trade and commerce will receive major boost. So international payment for 1 year. But this plan could not be implemented. So हूवर प्लान फेल्ड। हूवर प्लान के बाद दूसरा है लंदन मीटिंग। A conference was organized in London in 1933. A conference was organized in London in 1933 to consider the economic crisis. A conference was convened in London in 1933 to consider the economic crisis. 60 nations had participated. More than 60 nations had participated in this conference.
in this conference. More than 60 countries had participated. Many smaller countries demanded end of economic nationalism. Many smaller countries had demanded end of economic nationalism. They wanted to balance the trade. They wanted to maintain the balance of trade. They wanted to maintain the balance of trade. Balance of trade in order to stabilize the economy. In order to stabilize the economy. But big powers did not agree with the proposal. Big powers did not agree with the proposal. Big powers did not agree to the proposal. The conference could not reach on an unanimous decision. Conference could not reach on an unanimous decision. On unanimous decision. Therefore, London meeting failed. और उसके बाद आया रूजवेल्ट का प्लान. दिस इज कॉल्ड न्यू डील ऑफ रूजवेल्ट. थर्ड, अमेरिका ने सोचा कि पूरी दुनिया से एक्सपेक्ट करना बेकार है. अमेरिका की इकोनॉमी को सुधारिए, अमेरिका ठीक होगा तो पूरी दुनिया ठीक हो जाएगा. ऐसे ही उसको लीडर नहीं बोलते हैं. न्यू डील ऑफ रूजवेल्ट. Roosevelt was a US president. Roosevelt was US president. The New Deal of Roosevelt. मैंने आपको कहा था कि इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले अमेरिकन पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई और ये स्पेशल मीटिंग जो था करीब 100 दिन तक चला था. और जो ऑब्जेक्टिव था उसका था कि रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म 3R के बेसिस पर काम करना चाहिए. तो इसके लिए अमेरिकन पार्लियामेंट ने 3 लॉज पास किए थे. एक इंडस्ट्रियल सेक्टर से था, दूसरा एग्रीकल्चरल सेक्टर से था और तीसरा सोशल सेक्टर से था. और इस तीनों लॉज का इंपैक्ट हुआ कि धीरे धीरे अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो पटरी पर आ गई. आपको याद है कि जब कोरोना का फेज खत्म हुआ था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोगों के खाते में कुछ पैसा डाला था. ठीक है, और इसका मतलब यह होता है, पैसा डालने का मतलब यह था कि पैसा खर्चा करिए. जितना आप पैसा खर्चा करेंगे उतना ही चीजों के डिमांड बढ़ेंगे. खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगा तो इंडस्ट्री बढ़ेगा. इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस में हमारा इकोनॉमी पटरी पर आ जाएगा. यह था मोटिव. याद है आपको? याद नहीं है आप लोगों को? आप लोग याद करते नहीं अच्छी चीजों को. पैसा हजम कर जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं. जब कुछ पूछे ना तो एकदम गुम्मी बंद कर लो. तुम लोग गुम बन जाओ एकदम, बिल्कुल मौनी बाबा की तरह. कुछ पूछो, बोलना ही नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगा.
वाह, ये डी त्रिपति बोल रहे हैं कि हमारे अकाउंट में तो नहीं आया। वाह, मतलब बच्चा भी बच्चा बोल रहा है, उसमें तो तुम लोग और भी बच्चा होगा, तुमको भी पैसा चाहिए। उसमें तुम्हारा अकाउंट भी था, तुम्हारी उम्र भी हुई थी अकाउंट खोलने की, माइनर अकाउंट खुल सकता था तुम लोग का। तुम लोग बहुत लाजवाब हो बिल्कुल। तुम लोग को पैसा मिलता तो तुम लोग चाउमीन खाने में उड़ा देता उसको। अब देविश तमांग बोल रहा है कि यूट्यूब पर मैंने आपकी ओल्ड वीडियो देखी। ओल्ड क्या होता है? वो बोलता है कि उसमें पोलो टी शर्ट में स्मार्ट लगता है। ये स्मार्ट लगता है? स्मार्ट तो अभी भी लगता है तमांग। मुस्कान, तुम खाने पर ध्यान दो, ठीक है ना? तुमको पैसा मिले ना मिले उससे क्या मतलब है, तुम्हारी कल से ही चिंता खाने की है। तो रूजवेल्ट का था रिलीफ, रिकवरी एंड रिफॉर्म। ये 100 डेज तक चला था और इसमें कई सारे लॉज पास हुए और कॉन्सिक्वेंस हुआ कि अमेरिकी इकॉनमी जो है पटरी पर आ गई। लिखो, यहां से लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। American president invited a special session of American Parliament, which lasted for 100 days in 1933, which lasted for 100 days in 1933. During the discussion in the parliament, three important laws were passed. Three important laws were passed related to industry, agriculture, and social sector. Industry, agriculture, and social sector. These are collectively called the New Deal or New Behavior. These are collectively called as New Deal or New Behavior. These are collectively called as New Deal or New Behavior. It was based on 3R. R and R. It was based on relief, recovery, and reform. Relief, recovery, and reform. It was based on 3R. Relief, recovery, and reform. It was based on 3R, relief, recovery, and reform. There are various policies
of New Deal program: industrial policy, agricultural policy, and social policy. Industrial policy, agricultural policy, and social policy. इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक एक्ट पास हुआ, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिवाइवल एक्ट. इंडस्ट्रियल रिवाइवल एक्ट, नेशनल इंडस्ट्रियल रिवाइवल एक्ट. नेशनल इंडस्ट्रियल रिवाइवल एक्ट. दूसरा है एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एक्ट. और तीसरा है सोशल रिसर्जेंस एक्ट. सोशल रिसर्जेंस एक्ट. नेशनल इंडस्ट्रियल रिवाइवल एक्ट, एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एक्ट एंड सोशल रिसर्जेंस एक्ट. Social Resurgence Act. Industrial policy. The National Industrial Revival Act was enacted to bring the industrial sector out of crisis. National Industrial Revival Act. This act was enacted to bring the industrial sector out of crisis. इसमें पहली बार देखो, आप जानते हैं ना, अमेरिका एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई भी स्टेट का कंट्रोल नहीं रहता है. बट अमेरिका ने यह डिसाइड किया, इट्स पर्पस वाज टू कंट्रोल प्रोडक्शन एंड ट्रेड बाय द स्टेट. इट्स पर्पस वाज टू कंट्रोल प्रोडक्शन एंड ट्रेड बाय द स्टेट. Though this effort were made to increase employment opportunities and to increase the purchasing power of the people. Its purpose was to control production and trade by the state. Through this effort, मतलब स्टेट अगर प्रोडक्शन और को कंट्रोल करेगा तो जाहिर है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर एक इंडस्ट्रीज को, यूनिफॉर्म मार्केट असेसमेंट होगा, यूनिफॉर्म ट्रेड होगा, तो इससे सभी इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा, किसी एक सेक्टर का हेजेमनी नहीं होगा. तो इससे एक इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा. ठीक है ना. तो इट्स पर्पस वाज टू कंट्रोल प्रोडक्शन एंड ट्रेड बाय द स्टेट. पहली बार इस एक्ट के माध्यम से ऐसा लगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर भी कंट्रोल हो सकता है, एंड दिस कंट्रोल कुड बी एक्सरसाइज बाय द मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन एंड ट्रेड बाय द स्टेट. इसको बोलते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल रिवाइवल एक्ट was enacted to bring the industrial sector out of crisis.
इसके बाद लिखिएगा आप कि अमेरिका इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन imposed by the government. America is a capitalist economy without any restriction imposed by the government. But after this act, government decided to maintain strict control on production and trade. Government decided to take strict control on production and trade. Government wanted to give uniform attention to all parts of industries, to all areas of industries, so that uniform industrialization and uniform assessment of market could be made. Uniform assessment of market could be made. Uniform assessment of market could be made. Through this effort, there was increase in employment opportunity and increase the purchasing power of the people. Increase the purchasing power of the people. Due to these efforts, employment increased by 37% within a year, while the wages increased by 25%. Wages increased by 25%. Wages increased by 25%. Due to these efforts, employment increased by 37% within a year and wages increased by 25%. आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है किसी देश में बिकॉज ऑफ सिंगल लॉ। और एक एशियाई देश है, पता नहीं कब से कोशिश कर रहा है कि गरीबी रेखा से बाहर निकलें। जितनी कोशिश करता है उतना ही गरीब हो जाता है। एक साल में
25% वेज इंक्रीज होना बड़ी बात है। तो जितना कोशिश करता है उतना ही गरीब हो जाता है लोग। तो इसको कहते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल रिवाइवल एक्ट। नेशनल इंडस्ट्रियल रिवाइवल एक्ट। दूसरा है एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एक्ट। मतलब क्या था इसका कि जो अमेरिका है, ठीक है और जोर से बोलूंगा, तो जो अमेरिका है उसमें कोशिश की इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया था। और इससे क्या हुआ कि अब एग्रीकल्चरल लोगों को भी लोन मिलना स्टार्ट हो गया। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी एक्सपोर्ट वेराइटी का काम करेगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए काम करेगा, जैसे टोबैको का प्रोडक्शन करेगा, शुगर का प्रोडक्शन करेगा, तो उनको इंसेंटिव दिया जाएगा स्टेट की तरफ से। ठीक है, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा स्टेट की तरफ से। तो जैसे ही बैंकिंग एक्ट में रिफॉर्म करके लोगों को लोन मिलना स्टार्ट हुआ, वैसे ही अमेरिकन एग्रीकल्चरल सेक्टर में गजब का बूम आया। यहां तो मुद्रा लोन दे देता है, निकल जाता है, उसके बाद इलेक्शन में डिमांड करता है कि माफ कर देना, जो लोन माफ करवाएगा उसी को वोट देंगे। देश नहीं प्रॉब्लम है, देश के लोग तो देश है ना, एकदम नहीं। आप लोगों को तो वोट देना समझते हैं कि चलो एक दिन का काम चल गया, खाना पीना हो गया, बस वोट हो गया। देश से मतलब कितने लोगों को है अपने यहां, सोचने की बात है कि कोई नहीं सोच रहा है कि कौन के हाथ किस ओर ले जाएगा, बस फ्री में बातें मिलनी चाहिए। और क्या हुआ कि किसानों की आय दुगुनी करने का प्रयास लगातार चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है। और एक देखिए अमेरिकन जो एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एक्ट है कि कैसे लोन दिया नहीं कि किसानों का इनकम डबल हो गया। सबको दोष देते हैं हम, कोई एक दोषी नहीं है, और इस देश में कोई भोला भाला नहीं है, ठीक है ना, कोई भोला भाला नहीं है, कोई सफेद पोस्ट नहीं है जिसको आप समझते हैं कि अरे ये तो ये है, वो भी वही है। सब अपनी राजनीति में है। तो फार्मर्स वर गिवन स्पेशल एग्जेम्पशन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, व्हीट एंड टोबैको, जो एक्सपोर्ट वेराइटी एंड कॉमर्शियल क्रॉप थे। और इसका परिणाम हुआ कि 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर किसानों का इनकम डबल हो गया था। मैं जो आप जिसको सोच रहे हैं ना कि ये बहुत बोला बोला है, वो भी वही है। हाँ बोलता है दुगुनी तो नहीं हुई, आधा जरूर हो गया है। सही बोल रहे हैं बिल्कुल। देखो लिखो बच्चे, अंडर द पॉलिसी द एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एक्ट वाज फॉर्म्ड। Banks were permitted to give loan to the farmers. Permitted to give loan to the farmers.
loan to the farmers. Government gave a special incentive on production of commercial crop. A special incentive on production of commercial crop. Government gave a special incentive on production of commercial crop like cotton, wheat, tobacco, etc. Due to these efforts, the income of the farmers had doubled within 2 years. Due to these efforts, the income of the farmers had doubled within 2 years. Income of the farmers became double within 2 years. लिख लिया बच्चे सारे? ओके है सब? ओके है? ओके। यहां पर अमेरिका में एक टेनेसी वैली प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। टेनेसी वैली प्रोजेक्ट इसलिए स्टार्ट हुआ था कि लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। ठीक है, इस टेनेसी वैली प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था और उसके चलते रियली में काफी जबरदस्त एम्प्लॉयमेंट हुआ, लोगों को पैसा मिला और फिर इकॉनमी तेजी से दौड़ने लगी। और यहां तो बस क्या स्टार्ट हुआ? मनरेगा। अरे टेनेसी वैली प्रोजेक्ट एक पावर प्रोजेक्ट था जिसका फंडामेंटल आउटपुट होता था। हम लोग यहां पर क्या देखते हैं कि काम मिल नहीं रहा है उस तरह का, गड्ढा खोदो गड्ढा भरो, गड्ढा खोदो गड्ढा भरो, और फिर इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, नौकरी की गारंटी है। तो सोशल सेक्टर में देखना, सोशल पॉलिसी, the American Federation had enacted Social Resurgence Act और इसमें पब्लिक हेल्थ, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता भी दिया था लोगों को, एंड टेनेसी वैली प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड and thereafter the America came out of the recession. लिखना है इसमें बच्चे, लिखो। American Parliament had passed Social Resurgence Act. Social Resurgence Act. Under this act, public health, old age pension, ये कॉपी कर लो, पब्लिक हेल्थ, ओल्ड एज पेंशन एंड हेल्प टू हेल्पलेस, assistance for the helpless had started. Assistance for the helpless were started. Employment Guarantee Program was also started. Employment Guarantee Program was also started.
employment guarantee program was also started. American government had started Tennessee Valley Project to generate huge employment among the public. It also resulted in development of infrastructure. Therefore, America came out from the recession. And by 1933, the world recession was almost considered over. By 1933, the recession was almost considered over. Okay, so this is how you can look the great economic crisis. And now we will bring Japan in picture. हम लोग कल जो है जापान पढ़ेंगे, जापान का मिलिट्राइजेशन कितनी तेजी से हुआ ये देखेंगे, और जापान को इस लायक बनाएंगे कि वो वर्ल्ड वॉर कर सके. तभी तो रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस बनेगा. अभी तो रोम बर्लिन एक्सिस बन चुका है, मुसोलिनी और हिटलर, और इसमें हम लोग शामिल करेंगे टोक्यो को. रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस को हम लोग शामिल करेंगे, और तब जाकर के एलाइड पावर के साथ हम लोग वॉर करेंगे. ओके, सो कॉन्सिक्वेंसेस इज वेरी इजी कि कैसे अमेरिकी इकॉनमी जो है वो रिवाइव हुई. कॉन्सिक्वेंसेस उसी के साथ तो करवाया शिवांगी, कॉन्सिक्वेंसेस के साथ ही तो करवाया. जो रिफॉर्म था वो कॉन्सिक्वेंसेस के साथ ही था कि क्या परिणाम हुआ. दुगुना इनकम हो गया, ठीक है, इंडस्ट्री रिवाइव हुआ, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी, और देन फाइनली दे हैड कम विद द आइडिया दैट हाउ इकोनॉमी कुड बी रिफॉर्म्ड. और कॉन्सिक्वेंसेस था कि अमेरिकन इकोनॉमी केम ऑन द ट्रैक, देन वर्ल्ड इकोनॉमी ऑल्सो केम ऑन द ट्रैक. ओके, उसी के साथ कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. दैट्स ऑल फॉर द डे. विल सी यू ऑन द मंडे. आराम से 2 दिन रेस्ट करिए आप.